Good evening, everyone. So my name is Jay Sethi. I'm a chartered accountant, and apart from doing all routine compliance work, I also specialize in business process. So I mean, to be more precise, I help businesses with respect to system, process, internal controls, so that they can improve productivity and profitability within their own businesses. Friends, I met Samir in a business meeting in somewhere in January 2022, and soon after we became good friends. And I got associated with Samir and Dhan Creators in 2022 itself as a client too, and I'm a fan since then. So working with Samir was a game changer, truly a game changer, friends. So they provided me a tailor-made, comprehensive financial plan that was designed to my specific needs. His expertise and guidance actually helped me to make informed business decisions, investment decisions, not only about my own investments and retirement planning, but also he gave me a crucial tips regarding stock market trends. So, dosto, I'm very much confident in my financial future, and thanks to his guidance, it gives me immense pleasure to introduce my friend Samir Kaila, who is a mutual fund distributor and has over 26 years of rich experience in the capital markets. Friends, he founded Dhan Creators in December 2015 with an objective of providing appropriate financial solutions to the investors. So, Dhan Creators at this moment is serving around 800 plus investors and managing a portfolio close to 100 crores. And coming to vision of Dhan Creators, so Dhan Creators vision is to provide impartial financial guidance and build personalized strategies that will be enabled their clients to take informed decisions and achieve financial goals with a secured future. And while coming to personal mission of Samir, so his mission is to educate, transform, and create 500 crorepati families and enable them achieve their financial milestone by 2034. So, friends, today Samir is going to share us his own ideas about navigating our portfolio in next 1 years. That means this Diwali to next Diwali, and he will be sharing with us the strategies that we must adopt over next few years to ride the volatility and create wealth out of it. So, friends, without taking much of your time, let me introduce Samir. Samir, welcome you. Guys, please put your hands together for the Samir. Welcome, Samir. Thank you, Jay bhai. Thank you so much for the wonderful introduction. Just give me a second, please. Sure. So जय भाई प्लीज एडमिट करते या मैं डिसेबल कर दीजिए वेटिंग रूम ना डिसेबल कर दीजिए थैंक यू सो गुड इवनिंग एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग आलोक जी गुड मॉर्निंग यूएस में सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एनुअल इवेंट ये हमारा दिवाली टू दिवाली का हमारा एनुअल इवेंट होता है जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए सो आज पिछले एक साल में जो हुआ और अगले एक साल में जो चैलेंजेस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम इस छोटे से आधे घंटे के सेशन में हम कवर करेंगे और उसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप प्लीज पूछें बेझिझक पूछें एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम लेट मी जस्ट शेयर पीपीटी विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल मेरी पीपीटी दिख रही है जय भाई परफेक्ट थैंक यू सो मार्केट आउटलुक दिवाली 2024 से दिवाली 2025 तक सो फ्रेंड्स टू बिगिन विद जैसे जय भाई ने बताया आई एम माई सेल्फ समीर कैला एंड आई हैव ओवर 26 years of experience in the capital markets and I am a volatility coach. We founded Dhan Creators in December 2015 and with the primary objective was to provide monetary and protection solution to 800 plus investors. So हमारा विजन जैसे जय भाई ने बताया कि टू प्रोवाइड इम्पार्शियल गाइडेंस
टू द इन्वेस्टर्स, ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाए और बेटर फ्यूचर बना पाए। और मिशन हमारा 500 करोड़पति फैमिलीज बनाने का है। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 20, एंड बाय नेक्स्ट ईयर दिस टाइम अराउंड वी आर होपफुल कि हम लोग 50 के आंकड़े को छू जाएंगे। 500 हमारा अल्टीमेट टारगेट है 2034 तक। तो आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। पिछला एक साल दिवाली से दिवाली तक कैसा रहा, पिछले साल 2023 की दिवाली कैसी थी और 2024 की दिवाली कैसी, रोड अहेड, पॉजिटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अगले साल की अपॉर्चुनिटीज क्या आ सकती हैं और क्या आ रही हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए क्या इन स्टोर है, और वेयर शुड वी इन्वेस्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। अगर मेरे को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं पैसा कहाँ लगाऊं। तो एक व्यू देखते हैं, रियर व्यू में हम देखते हैं ना कि कैसे हमने क्या किया, क्या 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 अचीव किया। तो एक स्नैपशॉट है 2023-24 लास्ट ईयर जिन्होंने अटेंड किया था, तो हमने सेंसेक्स को क्लोज किया था 65,000 के आसपास और निफ्टी को क्लोज किया था 19,425 पे इस दिवाली 2024 में। और हमने तब प्रेडिक्ट किया था कि 55,000 से 75,000 के बीच में सेंसेक्स रहेगा और निफ्टी 17,200 से 24,000 के बीच में रहेगी। क्या कोई बता सकता है निफ्टी एग्जैक्टली कल कितने पे क्लोज हुई है? एनीबडी? निफ्टी क्या क्लोज हुई है कल? वाइल्ड गेस, वी हैव 14 पीपल, कल निफ्टी क्या क्लोज हुई है? नहीं त्रिभुवन जी, 25,000 बहुत दूर हो गई है। 24,100, 24,100 के आसपास हम क्लोज हुए हैं कल। तो हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास मार्केट ऑन द हायर साइड जा सकती है, इट 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 क्लोज्ड ओवर देयर, जबकि गई 26,200 थी, राइट। सो अब इस साल, अब जैसे मैंने बताया 80,000 सेंसेक्स, और ये निफ्टी का 2 दिन का पीछे का डेटा है, तो 24,100 के आसपास हम क्लोज हुए। सेंसेक्स गेन्ड 23.5% एंड निफ्टी हैज गेन्ड 25.6% इन लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में 25% का रिटर्न इंडेक्स ने बनाया है। अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, बीएससी 500 ने 34% का रिटर्न दिया है, निफ्टी मिड कैप ने 44% का और निफ्टी स्मॉल कैप ने भी 44% का। ये पिछले एक साल दिवाली टू दिवाली का डेटा है। पिछले एक साल में हमने क्या क्या चैलेंजेस देखे। इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली बहुत हाई थे, अब थोड़ा ईज आउट होने शुरू हुए हैं। इंटरेस्ट रेट डाइवर्जेंस हो रहा है, जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज कम कर रहे हैं। मॉर्गेज रेट्स अभी भी ऑन द हायर साइड हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, बढ़नी शुरू हो गई हैं। अगर आपने न्यूज देखी हो तो इसराइल ने आज सुबह ईरान पे अटैक किया है, तो ये टेंशन बढ़ रही है। एंड ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग कि एक क्लियर मैंडेट आएगा। फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है लोकसभा इलेक्शंस में, बट हाउएवर देयर हैज बीन कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज द पॉजिटिव साइन। अब पिछले 5 साल में अगर हम दुनिया भर के मार्केट्स देखें तो हमारी मार्केट और बाकी मार्केट्स में क्या कंपैरिजन है। इंडिया ने पिछले 5 साल में तकरीबन तकरीबन 100% रिटर्न दिया है, जबकि अंडर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग मार्केट इज चाइना, जिसने कि -6% रोलिंग रिटर्न दिया है। उसके बाद आपका यूएस मार्केट्स आ जाती हैं और जापान आ जाता है, जो कि आउट परफॉर्मेंस में नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं। एफआईआई के फ्लोज, क्या कोई बता सकता है एफआई ने अक्टूबर में कितना सेल ऑफ किया है अभी तक? एनीवन? somewhere 90,000. दैट्स ओवर 1 लाख करोड़, कल का डेटा मिला के इट्स ओवर 1 लाख करोड़ विच दे हैव सोल्ड इन अक्टूबर, एंड इन 2024 it's -2.2 लाख करोड़ which they have sold. It's a whopping amount. अगर ये पैसा, अगर हम 2008-9 में होते तो पता नहीं कितनी बार के नीचे के सर्किट लग गए होते।
ठीक है, तो थैंक्स टू you guys and everybody who has been investing in the Indian markets. We as a जो अपना DII है उसने तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का बाय किया है 2024 में, एंड थैंकफुली वी आर क्लोज टू 80,000. इसी वजह से हम लोग खड़े हुए हैं. अगर यही चीज होती पिछले 10 साल पीछे तो आई डोंट थिंक सो हम लोग इतना सस्टेन कर पाते, क्योंकि आपको पता ही है 25,000 करोड़ का SIP बुक हर महीने चल रहा है, प्लस एड ऑन इंस्टीट्यूशंस पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, HNIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, which has helped Indian markets to stick to 80,000 levels after so much selling by the FIIs. अब is the road as smooth as it looks, or it's going to be a bumpy ride? That's a big question going ahead for next 1 year. So the tug of war between the bulls and the bears continues as we move from Diwali 24 to Diwali 25. तो अब क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? नेगेटिव्स नहीं बोलूंगा मैं, चैलेंजेस बोलूंगा इस चीज को. मैक्रोस इंडिया के बहुत सॉलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज वेरी मच इन कंट्रोल. बैलेंस शीट हमारी कॉर्पोरेट्स की हेल्दी हैं. कैपेक्स एंड कंजम्पशन हमारा ठीक है, and government reforms has been really good in last 10 years which have actually started yielding the returns in last 2-3 years. Negatives सबसे प्राइमरी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो कि मेन एस्केलेशन है. 2 लड़ाइयां चल रही हैं इस वक्त, एक रशिया यूक्रेन. काइंडली म्यूट योरसेल्फ सर. सो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, प्लस अभी ईरान इजराइल में भी टेंशन आ रही है. अर्निंग्स की ग्रोथ स्लो हो रही है, और इंडिया की वैल्यूएशन बाकी कंट्रीज के मुकाबले महंगी है. वो पुराना ही चलता है, उसको हटा देंगे, चेंज करा के नहीं हो सकता. Okay. So what are the positives? GDP is expected to grow at 6.8% in financial year 2025, which is the highest among all the countries in the world. Foreign reserves हमारे $700 billion क्रॉस कर चुके हैं. RBI का डिविडेंड, GST collections has been good, and जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं that is also good, and the consumption is on rise. So now this is one thing that that we should look into. This data we should look into, that expanding wallets of households is set to increase going ahead. ऑटोज का शेयर, अगर आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर रेफ्रिजरेटर्स पे बात करें, इंडियन कंजम्पशन इज जस्ट 18%, एंड लुक एट US, इट्स ओवर 100%, राइट? स्मार्टफोन यूजर्स, it's 83% in US and 37% in India. Outbound trips 6% in India, whereas in US it's 42%. राइट? सो अभी बहुत स्कोप है जहां पर कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को पेनिट्रेशन करना है, और यहाँ स्कोप दिखता है कि आगे चीजें बड़ी होंगी. सो जस्ट अ सेक प्लीज. सॉरी. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? जियोपॉलिटिकल नंबर 1, उससे होगा क्या? जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से क्या चीज हो सकती है? एनीवन? जियोपॉलिटिकल टेंशन से क्या क्या हो सकता है? ग्लोबल स्लो डाउन. ग्लोबल स्लो डाउन, गुड सर. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी. तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल सही है. हाई इन्फ्लेशन होगा. कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट्स विल बी इम्पैक्टेड, बिल्कुल सही. और एनीथिंग एल्स? कच्चा के बाद डिमांड कम होगी. हाँ जी,
डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, चलिए ग्रेट। इंटरेस्ट रेट्स, अच्छा उसके बाद ग्रोथ हमारी थोड़ी सी धीमी पड़ती दिख रही है। जीएसटी कलेक्शन हमारा 1.73 lakhs है, विच इज स्लोएस्ट ग्रोथ कलेक्शन इन द कलेक्शंस इन 40 months। पिछले 40 साल में सबसे कम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जीएसटी की कलेक्शन आई है, विच इज वेरी वेरी सम साइन, राइट। वैल्यूएशंस हमारी महंगी हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे हम कैसे महंगी हैं और क्यों महंगी हैं। जॉब क्रिएशन इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे लिए पॉपुलेशन अगर ब्लेसिंग है तो इट कैन बिकम कर्स ऑल्सो अगर जॉब क्रिएशन नहीं हुई तो। ऑयल प्राइसेस, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि इट कैन राइज अमिड्स मिडल ईस्ट टेंशन, स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड एफआई सेलिंग, जो 1 लाख करोड़ की हो चुकी है पिछले 1 महीने के अंदर। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, पिछले 20 दिन के अंदर, 20-22 दिन के अंदर। सो दीज आर द चैलेंजेस, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल और ईरान का भी एस्केलेशन चल रहा है। US debt has crossed $35 trillion. This is another worrisome sign. अगर आप देखो year 2000 में it was 55-56%, it has now 124%। मतलब जितना आप पैसा, आप अब जोर से ज्यादा पैसा आपने छाप दिया है, राइट। सो यूएस इलेक्शंस कब है, एनीबडी? 4th नवंबर, 4th नवंबर। नवंबर फर्स्ट वीक में है। हाँ, नवंबर फर्स्ट वीक में। सो दिस इज वन थिंग जो कि एक ट्रेंड सेट करेगा आने वाले थोड़े टाइम के लिए। सो अभी नेक टू नेक चल रहे हैं कमला हैरिस एंड ट्रम्प। ट्रम्प। सो लेट्स सी who wins the game, and let's see how the market's going to react. That remains to be seen. That is one thing that we all will be looking for. वो जो भी आएगा, जिटर आएगा, शॉर्ट टर्म आएगा, लेकिन एक अगर हो सकता है मार्केट पुल बैक कर जाए, हो सकता है इंडिया में फ्लोज वापस आ जाएं जो FIs ने निकाले हैं। लेट्स सी, विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 10 days to get the clarity on this, and this is another worrisome sign. सर जरा म्यूट कर लेंगे प्लीज। अर्बन इकोनॉमी इज एक्चुअली स्लोइंग डाउन नाउ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो पिछले कुछ टाइम में जो रिजल्ट्स आए हैं, द कंजम्पशन स्टॉक्स पे असर आया है। नेस्ले कोलगेट के रिजल्ट्स म्यूटेड हैं या थोड़े से हल्के से डिक्लाइन है, विच इज नॉट अ गुड साइन। एंड इफ यू सी अराउंड, दिवाली का सीजन है, लगता है कि दिवाली पे रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। माइट बी पहला क्वार्टर कुड बी द रीजन कि इलेक्शंस थे, और सेकंड क्वार्टर की रेन्स बहुत हैवी हुई हैं। साउथ इंडिया में तो अभी भी चल रही हैं, नॉर्थ में भी डिलेड रेन्स का इफेक्ट था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में, एक क्वार्टर और देखेंगे, अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर ठीक नहीं आते, देन आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर say course correction or a time correction over a period of time. बट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी, ये मैंने कोटक म्यूचुअल फंड की प्रेजेंटेशन से उठाया था कि मार्केट कैप टू जीडीपी, इफ यू सी एट एन एवरेज इट्स 84% फॉर द पीरियड, बट करंटली इट्स वी आर एट 146। अब थोड़े से हम नीचे आ गए हैं, बट हैविंग सेड दैट, एवरेज से हम 50-60% ज्यादा हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, which is a worrisome sign. Now going ahead for the next 1 year, what challenges we could face: slowdown in the economy, high inflation, muted corporate earnings, geopolitical tensions to continue, and crude price as a result can high, which can actually lead to high inflation. Opportunities क्या हैं? इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हो गए हैं, और मोर और लेस हमें भी लगता है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर इंडिया में भी रेट कट्स आएंगे, क्योंकि अगर हमारे को इकोनॉमी को पुश करना है
तो हमें भी रेट कट कहीं ना कहीं जाके देना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड हो सकती है। लेट्स से अगर एक एग्जांपल लूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि अगर लेट्स से कुड बी अ पॉसिबिलिटी इफ ट्रम्प कम्स टू पावर। लास्ट टाइम अगर आपने देखा था ट्रम्प के टेन्योर में कोई वॉर नहीं हुआ था, राइट? तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट होके द वॉर कुड एंड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो जाएंगी। क्रूड बिलो 80 इज गुड, बट बिलो 60 इट्स वर्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारा 70 टू 80 के बीच में अगर क्रूड घूमता रहे तो हम इंडिया के लिए एज एन इकोनॉमी इट्स गुड। रिवाइवल ऑफ जीएसटी कलेक्शंस एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जैसे मैंने बोला अगले 6 महीने, अगले क्वार्टर से 2 क्वार्टर हमें देखना है कि अगले हमारी अर्निंग्स कैसी आती हैं। और डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रगलिंग टू कम डाउन बिलो 100। लास्ट टाइम भी इट वाज होवरिंग अराउंड 104 105, अभी भी वो वहीं पे ही है। बट हैविंग सेड दैट, इंडियन say currency has been resilient for the last 1 year, which has outperformed the global currencies globally, so which is a very good sign. This is one piece of worry. अब तो बहुत ठंडा हो गया, अब तो पी काफी नीचे आ गया। एक टाइम पे इट वाज क्लोज टू 24, आज 22.6 है अगर मैं कल की मार्केट फॉल के बाद देखूं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एवरेज देखें पिछले 2 साल का, तो पी का लो इज 20। वी आर स्टिल अबव 2 year एवरेज, राइट? तो और हाईएस्ट जैसे मैंने बताया 24 के ऊपर था, तो इट वाज 24.4। सो एनीवेयर वी आर स्टिल द हाई वैल्यूड मार्केट। अब आते हैं इस स्लाइड के ऊपर, अनदर इंपॉर्टेंट डेटा विच एवरीबडी शुड actually look very carefully. Every year we have a drawdown of close to 10% every year, and every 4 years, अगर आप यहाँ से ले 2006, 2008-9 का पीरियड, 2012, 2016, 2020, हर 4 साल के बाद कोई ऐसा एक साल आता है, 4-5 साल के बाद, कि जहां पर 15 से 20% का फॉल आता है। वी आर क्लोज टू 8.5% एज वी स्पीक फ्रॉम द टॉप, वी आर डाउन नाउ। अगर यही अगर 10% का रेशियो लेके चले तो अनदर 2-3% इज टू गो। अगर वो उसको डीप डाउन जा सकता है, वी कैन गो डाउन टू 20% ऑल्सो फॉर दिस ईयर। वैल्यूएशंस 1 year forward कुछ टाइम पहले, मतलब ये सितंबर एंड तक का डेटा है, was 21.5 एज वी स्पीक। 1 year forward is 20.1. so we have cooled down, but the average is 18.6. we need to cool down further, right? Now look at these two indices, Nifty mid cap and Nifty small cap, which are trading at 42% to 47% premium to the historical averages. यानी कि यहाँ से इनका करेक्ट होना तय है। They are going to go down or they are going to consolidate in these levels. अगर वो नीचे नहीं आते तो there is a possibility कि मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर आपको फर्दर रैलीज नहीं दिखेंगी। ये एक डेटा है जो कि मार्केट कैप शेयर ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स इन अ टोटल यूनिवर्स ऑफ 500 शेयर्स। एक टाइम होता था 2008 में जब 80% मार्केट कैप वाज टॉप 50 स्टॉक्स और बाकी का यूनिवर्स 20% पे होता था। आज इट हैज चेंज कि 55% के आसपास इज लार्ज कैप यानी टॉप 50 स्टॉक्स और बाकी का यूनिवर्स इज 45%। अब क्या होगा, अगर एफआई का इनफ्लो आता है तो इट विल गो अप, इट विल कम इनटू इंडेक्स, राइट? एंड लार्ज एंड मिड कैप कैन लूज देयर शीन गोइंग अहेड। सो ये सेंसेक्स का चार्ट है। As of now, we are at 79,400 levels. First level is 77,400. Second level is 75,000. यहाँ पे कूल ऑफ होना चाहिए। इन केस अगर यहाँ भी नहीं रुकता तो हम लोग इलेक्शन डे के लोज को टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन गो डाउन एंड टेस्ट इलेक्शन डेज का लो। कि निफ्टी का लेवल है, जो लोग सेंसेक्स ट्रैक करते हैं उनके लिए ये चार्ट है, जो लोग निफ्टी ट्रैक करते हैं उनके लिए ये चार्ट है। 23,500 is a very important support. If it doesn't hold, 22,800 is the next support. And if this also doesn't hold, then we can go down to 21,000 levels by, मतलब अब by नहीं बोल सकते, yes, it can go down.
to 21,000, उसके नीचे नहीं दिखता. So from Diwali 2024 to 2025, we are predicting that Sensex could be in the range of 70,000 to 86,000, and Nifty could be in the range of 21,000 to 26,500, or could be 27,000. I would be happy if it goes on the higher side of the range, but on the downside, this is where the things could be capped. So what should, एक second, let me take a pause over here. Any questions with regard to till now? समीर जी, ये जो पैसा FII का निकल रहा है, ये जा कहाँ रहा है? मैंने सुना है चाइना में जा रहा है, तो चाइना का तो अभी आपने जो है माइनस में दिखाया है. सर चाइना ने अभी स्टिमुलस वो लाया है कि भाई वो इकोनॉमी को रीबूट करने के लिए, बट अभी वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये मतलब चाइना आपको पता ही है कि कितना वॉलेटाइल कंट्री है, मतलब वहां पे, बट थिंग्स वहां पे अगर रिबाउंड होती हैं तो ऑब्वियसली पैसा फ्लो होके चाइना में जाएगा, बिकॉज चाइना हैजंट परफॉर्म्ड फॉर द लास्ट 4-5 years now, and FIIs can move to that particular country. Yes, they can. तो So ये तो सर, that is a big challenge at the end of the day. तो ये सर, ये तो फिर अगर अपार्ट फ्रॉम जो भी चैलेंजेस हैं, इसमें ये तो बड़ा चैलेंज है. वो तो मे बी नेक्स्ट 4-5 years वो फ्लो उधर को ही रहे, और हमारी मार्केट ग्रो ही ना करे. नहीं सर, ऐसा नहीं है. देखो, हमारी मार्केट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि हमारे उसमें कंटिन्यूटी है, एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, एज फार एज द पॉलिसीज आर कंसर्न्ड, एंड वी आर मच मच मोर स्टेबल कंट्री देन चाइना एज फार एज देयर पॉलिसीज आर कंसर्न्ड, राइट. आज वो स्टिमुलस ले आए हैं, कल कुछ और प्रॉब्लम हो गया वहां पर, फिर कुछ और चीज आ जाएगी. यस ललित, तो आप देखो, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा. इट कुड बी अ टेम्पररी इम्पैक्ट, बट यस, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा अगर चाइना की तरफ पैसा मूव करता है. स्टेबिलिटी, बट स्टेप फ्रॉम द कंट्री पर्सपेक्टिव, आज की डेट में ग्लोबली भी विजय जी अगर देखो, सो इंडिया इज द फेवर्ड नेशन. ग्रोथ हमारी सबसे ऊपर है. चाइना अभी भी अंडर ग्रोथ पे, अभी उतना नहीं आया, चाहे जो मर्जी स्टिमुलस ले आए. इंडिया में रेट कट शुरू हो जाएंगे तो पैसे का फ्लो वैसे ही आपका डोमेस्टिक ही ठीक हो जाएगा, और ग्लोबली भी आना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ललित, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन समीर. कभी एक मेरा खत्म नहीं बेसिक हुई है. सो फार मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है, अभी अभी अगर मार्केट्स थोड़ा सा डाउन जाने की उम्मीद है, तो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू बाय. सो आर देयर एनी स्पेसिफिक पॉइंटर्स कि किस समय खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए? That will be covered in the second part. अभी यहाँ तक मैंने पूछा था कि अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, सो मतलब वो है, बाकी आगे चीजें मैं आगे ये बताना, व्हाट इज अ गुड टाइम दैट वन शुड बी इन्वेस्टिंग देयर मनी. I'll be covering it in the next 10 minutes, 10-15 minutes. थैंक यू. हाँ जी जतिन जी, प्लीज अनम्यूट. हाँ सर, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 6-7%, 7% के आसपास आ रहा है, और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही है वो स्टिल सिंगल डिजिट में आ रही है, तो वो इन लाइन क्यों नहीं है कि कंपनी ग्रोथ में तो दिखना चाहिए ना जीडीपी ग्रोथ इतना बढ़िया. अगर जीडीपी ग्रोथ है 6-7% का, और इन्फ्लेशन भी 6-7%, तो एटलीस्ट 12-13% तो कंपनी को ग्रो करना चाहिए. वो वहां पे क्यों नहीं दिख रहा है फिर हमें अर्निंग्स में? सर वही तो एड्रेस किया ना कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं पिछले 3 साल में तो ठीक था, लेकिन यही एक मे बी कुड भी, मैंने रीजंस भी बताया, जैसे हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शंस थे, राइट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो पैसा था वो वहां पे इलेक्शंस की तरफ मूव हुआ. सेकंड जो था क्वार्टर, उसमें बारिशें इतनी ज्यादा हो गई कि कंजम्पशन या और बाकी चीजें अभी लीड नहीं कर पाई. सो लेट्स सी, अभी 1-2 क्वार्टर्स और देखते हैं. इट्स रियली टू अर्ली टू पुट अ पॉइंट ओवर देयर कि यार अब मतलब वी आर नॉट ग्रोइंग, या हमारी ग्रोथ एक्सेलरेटर कम हो गया है. लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर अनदर क्वार्टर. वी विल रिविजिट इन जनवरी कि एक बार जो सेकंड थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं. उसके बाद फिर वी विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू कि यार यहाँ से आगे का क्या और रोड मैप हम लोग बना के चल सकते ओके सर. एंड हैं. एक जिस तरह क्वार्टर भी और आपने एक हाँ जिस तरह भी आपने एक बताया कि नेक्स्ट जो आपने
बताया कि नेक्स्ट दिवाली तक 21,000 से 26,500 के बीच में रहेगी मार्केट। सो अगले एक साल ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे मतलब हम। मैं आगे आ रहा हाँ, हूँ, आगे आता हूँ अच्छा, इसके ऊपर। आई विल बी ठीक है सर। कवरिंग दिस, आई विल बी कवरिंग दिस। यस, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको मॉडरेट करनी है। देखिए सर, मैंने आपको पहली स्लाइड अगर आपने देखी हो तो पिछले एक साल में इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया, स्मॉल और मिड कैप ने 40 से 45% के बीच का रिटर्न दिया, दोनों जी सेगमेंट्स में। सो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आपका सीधा मतलब जैसे आप फिक्स्ड इनकम में आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिलता बिल्कुल। चला जाता है हर साल, उसी पे अगर आपने एफडी कराई है तो मिल रहा है। ये एक टर्बुलेंट जर्नी है, राइट, ठीक वोलाटाइल है सर। जर्नी है। सो अगर कहीं कोई चीज बढ़ गई है तो उसको लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से वो काम करके उस पे आएगी आएगी। अगर वो अगर नीचे आ गई है तो वो ऊपर रिटर्न बनाएगा, अगर कोई बहुत ज्यादा चीज ऊपर चली गई है तो वो मॉडरेट होके आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज अगर इक्विटी मार्केट्स 15% का सीएजीआर रिटर्न पिछले 45 साल से दे रही हैं, राइट, तो और पिछले एक साल में अगर 30% रिटर्न आ गया तो वो मॉडरेट होने में तकरीबन एक साल लगेगा, हम मान के चले। तो इसलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। सो नाउ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पे लिए क्या करना चाहिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? एनीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर यस। थैंक यू। टाइटल हाइड हो रहा है, पता नहीं, बाकी तो दिख रहा है। टाइटल हाइड हो रहा है? हाँ, ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप आ रहा है हर स्लाइड के ऊपर। एक मिनट, अब आ रहा है? अभी भी आ रहा है सर। वो पता नहीं। आपका, हाँ, अब हट अब गया। नीचे, अब वो नीचे चला गया। अब अब वो नीचे नीचे, वाला शॉर्ट टर्म पेन इन द न्यू पोर्टफोलियो, वो आधा एक मिनट लाइन। यार। हाँ ठीक है ठीक है, वो उसका वो है स्क्रीन, वो जो होता है ना जूम का। ठीक है चलिए। सो व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। भाई जिसको अगले एक साल में पैसा चाहिए ना, पैसा निकाल लो, क्योंकि जो आपके रिटर्न्स बन गए हैं और पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। डिस्पाइट दिस फॉल, डिस्पाइट दिस फॉल द रिटर्न्स हैव बीन रियली गुड। अभी भी आपके पोर्टफोलियोज में तकरीबन 15 से 20% के रिटर्न्स दिख रहे होंगे। बेटर है प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। ठीक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एसआईपीज करते रहिए, चलाते रहिए, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बैलेंस को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। रीबैलेंस इन द सेंस, कुछ एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आज से 7-8 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 10 साल के लिए, तो एक अमाउंट बन गया, राइट, बट उसको फंड की रिक्वायरमेंट अगले 2 साल में है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। तो आई नीड टू रीबैलेंस इट। मैं ये वेट नहीं कर सकता कि यार अगले 2 साल में जब मार्केट, अगर मार्केट करेक्ट कर गई 25-30% करेक्ट कर गई तो मेरा पोर्टफोलियो डेंट लग जाएगा या हिट लग जाएगा। आज ही मैं करेक्टिव एक्शन लेके उसको रीबैलेंस कर दूं, एटलीस्ट 25-30% या जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट मेरे को लगता है कि फर्स्ट ईयर या अगले 2 साल में आने वाली है, उसको मैं आगे मूव कर दूं, राइट। अब तीसरी चौथा चीज, अगर किसी ने आज पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली उसका शॉर्ट टर्म उसको नेगेटिव दिख रहा होगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। कभी भी आप कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज में शुरू करेंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। आपका पोर्टफोलियो पहले 3 से 4 साल के अंदर एक या दो बार नेगेटिव जाएगा, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है, आपका पोर्टफोलियो इनिशियली एस्टैब्लिश हो रहा है। एज द मार्केट मूव अराउंड मूव अप, एज द थिंग्स मूव अलोंग, वो चीजें सेटल डाउन होती चली जाएंगी और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा। एंड इट हैज बीन सीन की अगर 5 से 6 साल अगर कोई इन्वेस्टेड रह गया तो उसका पोर्टफोलियो मिनिमम एफडी के ऊपर निकल जाता। तो पुराने पोर्टफोलियोज में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको राइट कीजिए। छोटी वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, पूरी हो जाएगी और आगे आपका रिटर्न्स बन जाएगा। तो एसेट एलोकेशन कीजिए पोर्टफोलियोज में। अब आगे बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप सीधा सीधा लिक्विड फंड या फिक्स्ड इनकम या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में कीजिए। इक्विटी में आने का रिस्क ना लीजिए, क्योंकि इक्विटी विल बी वॉलेटाइल, वेरी वेरी वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म, राइट। 1 से 3 साल में आप डेट फंड्स में जा सकते हैं, आप मीडियम टर्म फंड्स में जा सकते हैं, आप हो सकता है अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क लें तो आप डायनेमिक फंड मतलब इक्विटी फंड्स में भी जा सकते हैं।
बट वी विल रिकमेंड कि आप फिक्स्ड इनकम की तरफ ही मूव रखें, सो दैट कल को आपके पोर्टफोलियो पे कोई हिट ना आए। 3 से 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम तो है ही है, वो तो एक ऑप्शन है। इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायनामिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP टू STP कर सकते हैं। इक्विटी डेट फंड्स में वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर है तो। और मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप वन टाइम और हाई रिस्क रखते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, तो आप वन टाइम भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप्स, बिजनेस साइकिल फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू गो ऑन एन SIP मोड। आई रिपीट, SIP mode only or STP mode only for small and mid cap for 5 years and beyond, not less than that, because these cycles can turn very very ugly। अगर मार्केट नीचे गया तो अगर कोविड के टाइम का किसी को ध्यान है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3 हो गया था, 9600 का इंडेक्स केम टू 3200। अगर नहीं है तो आप चार्ट देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो सिप फॉर स्मॉल एंड मिड कैप 5 years एंड बियॉन्ड, बट वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स, मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स में कर सकते हैं। वाई सिप इज द मोस्ट प्रिफर्ड प्लान एज वी स्पीक? क्योंकि मार्केट रेंज में रहेगा, मार्केट इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, रिटर्न्स मॉडरेट होंगे। अच्छा चलिए मैं एक काम करता हूं इसमें छोटा सा, एक सेकेंड। एक मैं पोल आपको दिया है आपकी स्क्रीन पे, आप रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगले 1 साल में? पोल दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके। पांच लोगों ने दिया, वी आर 17, 7। ओके। 10 हो गए, अभी वी आर 7 मोर। लास्ट 10 seconds। दैट्स इट। चलो इसको एंड कर देते हैं। सो 5 out of 10 are saying 10 to 15%. 3 out of 10 are saying 5 to 10%, and greater than two people are saying greater than 15%। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूं, अगर आप एनीवेयर, अगर हम FD को भी बीट कर पाए ना अगले 1 साल में, तो वी शुड बी रियली हैप्पी। दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम एक्चुअली saying, I can go wrong, I have full right to go wrong, and I feel कि हम लोग 10% के ऊपर बनाए, दैट्स माई गट फीलिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे डेटा जो कह रहा है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा शायद 8 से 10% के बीच का रिटर्न बनना चाहिए आने वाले 1 साल। अब वाई SIP इज द मोस्ट प्रिफर्ड थिंग? अच्छा लेट्स से मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, एंड आई वांट यू टू आंसर इट इन अ चैट बॉक्स, राइट? अगर किसी ने सिप शुरू की होती 1 अगस्त 2007 में, और उसको 31 दिसंबर 2008 तक चलाया होता, तो उसने इन्वेस्ट किया 1,70,000, और 31 अगस्त 2008 को वैल्यू थी 1,12,000। क्या करते आप? अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या करते? 1,70,000 का 1,12,000 हो गया। एनीवन? इन्वेस्टेड ही रहते सर। इन्वेस्टेड रहते? बट सर ये स्टे पुट, ओके, बट पोर्टफोलियो में तो मतलब ऑलमोस्ट 60,000 का लॉस है। ओके, तो हाँ जी, क्या करते साहब?
एक ही ने बोला स्टे पुट, एक और ने बोला कि बने रहते। साइमल्टेनियसली एक और जनाब ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी 1 जनवरी 2009 को। उनका पोर्टफोलियो 1,20,000 इन्वेस्ट किया और 198 हो गया। इस पोर्टफोलियो पे क्या, इस सिप पे क्या रिएक्शन आता? पार्टी, 70,000 का गेन, राइट भैया? कोई है? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है जी। ओके, नाउ हम्म ये उसी फंड का फर्दर एक्सटेंशन है, यानी कि 1,70,000 का 1,12 हुआ और 1,20 का 1,98 हुआ। ये दोनों अलग अलग लोगों ने लेट्स से सिप स्टार्ट करी, राइट? इसने निकाल लिया, ये बना रहा। अब एक और बंदा था, तीसरा बंदा था, उसने 1 अगस्त 2007 को इन्वेस्टमेंट शुरू करी और वो कंटिन्यू करता चला गया। तो हम्म 31 दिसंबर 2009 को उसने 2,90,000 इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू होगी 4,33,000। ये रियल डेटा है, हम्म राइट? नाउ द पॉइंट इज, अगर आप सिप में इन्वेस्टेड रहेंगे और एवरेज आउट होती रहेंगी चीजें, तो लेट्स से इसमें मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर मैं आई मार्क समथिंग, राइट? 3 से 5 साल इन्वेस्ट रहना एक चाहिए। सेकंड, हाँ। देखिए, नहीं नहीं, इसमें कुछ और चीज है। अगर आप देखें ये प्राइस जो है, ये प्राइस, ये वाला प्राइस, इट हैज कम डाउन ओवर हियर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलता है, और जब हम्म मार्केट ऊपर गई तो आपके रिटर्न्स बन गए। यहाँ पर था 23 का प्राइस था सबसे ऊपर, आप देख रहे हैं 1 अगस्त 2007 को 23 का था, बढ़कर 32 हो गया, करेक्ट? अब यहाँ पर अभी हम 32 पे नहीं पहुंचे, यहाँ पर अभी हम 32 पे नहीं पहुंचे 1 दिसंबर 2009 को, देख रहे हैं आप? बट हम्म पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,33,000 हो गई, यानी कि आपने नीचे एवरेजिंग किया और उसको आप सिप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाता चला गया। और जब मार्केट चली, अभी वहां तक भी नहीं पहुंची जो पीक था, तब भी आपके हम्म रिटर्न्स जबरदस्त बन गए। दिस इज व्हाट एवरेजिंग इज ऑल अबाउट, एंड इन्वेस्टिंग इनटू सिप इज ऑल अबाउट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? because next 1 year we feel that SIP is going to do its work. अभी तक SIP अपना काम नहीं कर रही थी, आप बाइंग ऊपर कर रहे थे, SIP जो भी चला रहे थे ऊपर बाइंग हो रही थी। आपको SIP आज चलानी है, डबल कर दीजिए। अगर आपकी SIP चेंज चल रही है तो इंक्रीज योर SIP by whatever amount you can, but for next 1.5 years इन्वेस्ट रिटर्न्स मत देखिएगा, पोर्टफोलियोज मत देखिएगा। तो आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ा हिट लग सकता है अगले आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर, लेकिन वो हिट SIP के लिए जरूरी है। क्योंकि आपकी एवरेजिंग अगर नीचे होगी तो पिछले 1.5 साल में जो रिटर्न आपने देखा, उससे पिछला 1.5 साल किसी को याद है? कुछ रिटर्न नहीं बना था। अगले 1.5 साल में बम्पर रिटर्न्स आए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2021 अगस्त से जो 2023 मार्च तक का जो पीरियड था, इट्स गोइंग टू बी रिपीटेड हम्म लाइकवाइज। तो आप इन्वेस्टेड रहें सिप में, इन्वेस्टमेंट करते रहें, एंड पैसा बनेगा 100%। तो सिप में इन्वेस्ट कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। सो वी आर हेयर फॉर यू, वी विल हेल्प यू टू स्टे ऑन कोर्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, गाइड यू थ्रू turbulent times, keep your emotions in check, help you diversify the portfolio and rebalance your portfolio from time to time. So this is it. Wishing you all a very very happy and prosperous Diwali. एक, अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो अपना डिस्कस करना है तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल पुट अ लिंक इन द चैट बॉक्स। आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिए, बट ये सारा का सारा होगा पोस्ट दिवाली, क्योंकि दिवाली अभी आप सब एंजॉय करें। और उसके बाद कुछ भी अगर आपको करना है, मैंने इसको लिंक को डाल दिया चैट बॉक्स में, आप बुक कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू इन स्टोर टुडे। Thank you very much for joining, and over to you, Jay sir. Thank you, Samir bhai. It was really wonderful and great insight.
वेरी यूजफुल एंड अच्छा लगता है यार आपके साथ साल में एक बार कम से कम इस मोमेंट पे ना, मतलब पूरे साल की एक इंसाइट मिलती है एंड कुछ हम लोग अपना भी प्लान कर पाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल एंड बहुत जरूरी है। द बॉटम लाइन व्हाट आई गॉट इज कि मार्केट चाहे जैसा भी रिस्पॉन्ड करे, इफ वी आर स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो ऑलवेज एवरेज आउट होके हमें बेटर रिटर्न ही देगा एज कंपेयर टू कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक रखें, रादर मिड टर्म आउटलुक भी रखें, लाइक 3 to 4 years का भी अगर आउटलुक है, तो आई बिलीव स्टॉक मार्केट से बेटर रिजल्ट मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक सो ना कॉमन क्वेश्चन आता है जय भाई, यहाँ पे मैं एक चीज एड्रेस करूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है या म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स की अगर आप हालत देखो पिछले 10-12 दिन में तकरीबन 25-30% की धुलाई हो गई है कुछ सिलेक्टेड बिल्कुल स्टॉक्स के अंदर, राइट। और अगर वो किसी के पोर्टफोलियो में है तो उस पर बिगर डेंट लगा होगा, राइट। नाउ द थिंग इज, एक छोटा सा एग्जांपल, यस बैंक, अभी सॉरी इंडसइंड बैंक देखो, यस्टरडे इट वाज डाउन 20%। अगर a bank in the like a stature of IndusInd Bank can go down 20% in a day, तो वो तो पोर्टफोलियो की बैंड बजा देता है अगर किसी के अकाउंट में इंडसइंड बैंक है तो, करेक्ट। सेम वे पिछले 3-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर कोई ना कोई स्टॉक 10-15-20% गिर रहा है। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपका स्टॉक, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, करेक्ट, तो वो आपके पोर्टफोलियो में डेंट देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये आ जाता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। अगर वो म्यूचुअल फंड में हुआ भी तो 1% 2% होगा, जो कि इतना ज्यादा आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ऑलवेज देर इज अ कुशन ऑफ सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन यू कैन से इन म्यूचुअल फंड्स रादर देन इन इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भैया मैं मतलब आई वांट, हम लोग स्टॉक्स भी करते हैं, वी सी इट इन फ्रंट ऑफ अस कि वो क्या पेन से कई बार स्टॉक्स पे निकलना पड़ता है लोगों को टू एक्चुअली मेक द रिटर्न्स एंड ऑल, और वो कई बार इमोशंस हमारे पे हावी हो जाते हैं। सो इट्स ट्रू ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल। और बल्कि अभी जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में ही मैंने देखा कि जो नेक्स्ट ईयर का हमारा निफ्टी, इवन दो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम निफ्टी में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वी विल बी मोर सेफर, सो निफ्टी इज आल्सो मेकिंग ओनली 8 to 9% इफ इट गोज इन द पॉजिटिव मैनर। और नेगेटिव साइड तो चली गई तो चली गई। सो अगर आपको 8-9% है तो व्हाई नॉट वी शुड गो विद द सेफर ऑप्शन एंड हैव अ बेटर रिटर्न, एटलीस्ट 12-13% हम म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे एंड वो जो रिस्क एलिमेंट है हम उससे भी बाहर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। तो अगला एक साल अगर जिसको इन एलोकेशन करना है फिक्स्ड इनकम की तरफ, या मतलब आप सिप मोड में या एसेट एलोकेशन के हिसाब से हाइब्रिड फंड्स में ज्यादा एलोकेशन करें, टाइम आएगा तो आई विल बी द वन जो कि मैं आपको इक्विटी में 100% आने के लिए बोल दूं। बिकॉज इतना तो हमारे को भी, बिकॉज वी गेट सो मेनी फीड्स फ्रॉम द फंड हाउसेस, हम लोग डायरेक्ट भी कई बार हम लोगों को आइडिया हो जाता है मार्केट सेंटीमेंट देखते हुए, इन्वेस्टर बिहेवियर देखते हुए, कि हम चीजों को एलोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड बट वो किसी खास स्टॉक में होता है, लाइक लास्ट ईयर यू हैड इंडिकेटेड मी फॉर द HDFC बैंक एंड इन जस्ट 2 months आई मेड अराउंड I mean 80-90,000 out of that one particular stock। तो वो एक मोमेंट्री कभी एक टिप मिल हाँ, गई, आपको भी अपनी गट फीलिंग है एंड यू मेड सम मनी, वो एक अलग चीज है। बट लॉन्ग टर्म फॉर द लॉन्ग वेल्थ मतलब क्रिएशन। अपने पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन के लिए तो हम हर वक्त इतना दिमाग नहीं लगा सकते। सो आई बिलीव म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है आलोक जी, इस चीज को एड्रेस करते मैंने आपको क्वेश्चन देख लिया, मैं आपसे करता हूँ फिर दिवाली के बाद बात करते हैं। फिर आप इंडिया कब आ रहे हो? मैं हाँ जी, मैं तो 14 नवंबर को आ रहा हूँ। बस उसके बाद अपना बैठते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, Thank थैंक you, यू bye. ऑल। चलिए, It आई was विशिंग really यू ऑल अ ओके, वेरी wonderful, वेरी beautiful हैप्पी session. दिवाली। क्या बाय क्या? बाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू हैप्पी जी, दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू समीर जी। थैंक यू जी, थैंक यू हिमांशु जी।